بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، قسط نمبر 36۔ شمیہ کی بات سن کر میں نے پہلی بار کہکا لگایا۔ دراصل میں کہکا لگانے سامی کی ذہانت پر اپنی مسرتوں کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی ذہانت کے آگے شمیہ کے تمام منتر پانی ہو جاتے تھے۔ اس نے ہزار پابندی اور منتروں کے باوجود شمیہ کو باندھ کر میری طرح بے بس کر دیا تھا۔ شامی کے حوصلے و صلاحیتیں یہ سکھا رہی تھی کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ بڑی دل جمی اور خود اعتمادی سے اپنی ذہانت کو کام میں لانا چاہیے۔ سچ پوچھو تو وہ البیلی حسینہ مجھے موت کے منہ میں بھی زندہ رہنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا سامی کی روح بلی کے جسم سے آزاد ہو گئی؟ ہاں، شمیہ نے جواب دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس منتر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس رات ٹھیک 10:05 پر سامی نے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لی اور بڑی آہستگی سے میز پر سے لڑک گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی روح بلی کے جسم کو چھوڑ چکی ہے۔ اب وہ نہ جانے کیسے ہنگامے کرنے والی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو کوستی ہوں کہ میں نے کیوں اس خطرناک لڑکی کا جسم حاصل کیا۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ جانے کس وقت کیا کر گزرے گی۔ جی میں آتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاؤں اور کہہ دوں کہ لے اپنا جسم واپس لے لے اور بھگوان کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن جب آئینے میں یہ دل موہ لینے والا حسین چہرہ دیکھتی ہوں تو اس بدن کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں بھی ضد میں آ جاتی ہوں اور فیصلہ کر لیتی ہوں کہ اس کا مقابلہ کروں گی۔ اگر کبھی ہارنے کی گھڑی آئی تو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اس کے حسین جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بہرحال بلی کے جسم کو بے جان ہوتے دیکھ کر میں کمرے میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں اس کی روح کو دیکھنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ روح میں انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ بس غیر ارادی طور پر میں اسے گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لیڈی ایکس اندر آ گئی۔ اس نے بلی کے مردہ جسم کو دیکھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ بلی سو رہی ہے۔ وہ میرے قریب آتی ہوئی بولی، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ تم کتنی بے دردی سے تمہیں باندھا گیا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ اچانک میں نے محسوس کیا وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ایکس اس انداز میں باتیں نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے حیرانی اور پریشانی سے دیکھا تو وہ کہکے لگانے لگی۔ پھر میرے کچھ سمجھنے سے پہلے اس نے مجھے کہا، چڑیل تو سامی کے جسم میں رہ کر نہیں سامی بن سکتی۔ اس طرح اس لیڈی ایکس کے جسم میں سما کر میں لیڈی ایکس نہیں بن سکتی۔ مجھے اچھی طرح پہچان لے۔ میں نے پہچان لیا، وہ سامی تھی۔ اس نے لیڈی ایکس کو ختم کر دیا تھا اور اس کے جسم میں سما کر میرے پاس آئی تھی۔ مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر اس نے کہا، تو مجھے کسی ایک جسم میں قید کرنے اور مار ڈالنے کے لیے کتنے منتر سیکھے گی؟ اس دنیا کا کوئی منتر ہو، کوئی سائنسی شعبہ ہو یا کوئی بھی علم ہو، سب دماغ سے پیدا ہوتے ہیں، تو اپنے گرو مہاراج کے دماغ سے سیکھے گی؟ میں اپنے دماغ سے اس کا توڑ کرتی رہوں گی۔ بہت دنوں سے وہ سوچ رہی تھی، میں اس منتر سے کیسے نجات حاصل کر سکتی جسے تو روزانہ پڑھتی ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ میں کسی طرح اپنا ایک ہمدرد اور مددگار پیدا کروں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے پہلی بار دنیا کی دکان میں کھوٹے اور کھرے سکے کی پہچان کی۔ گھر کے سامنے والے ہوٹل میں آئے دن دیہڑے تماشے کرتی رہی۔ دھرم کے مطابق گھر مرد اور عورت کے دماغ میں افغان کا یہ عقیدہ بٹھا دیا
کہ मैं पिछले जन्म में की एक नारी हूँ और इस जन्म में बिल्ली बनकर आई हूँ। मेरा ख्याल था कि इस दौरान किसी से मेरी दोस्ती हो जाएगी और मैं उसे अपना हमदर्द बना लूँगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम सीक्रेट सर्विस के महकमे में चले जाएंगे और इस इमारत में कैद हो जाएंगे। ये भी अच्छा ही है। यहाँ मैंने भवानी शंकर को मजबूर कर दिया कि वो मेरे हर हुक्म की तामील करे। मैं अच्छी तरह समझती हूँ ये सब मतलब के बंदे हैं, अपने मतलब की खातिर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और ये ख्वाहिश किसी तरह पूरी होती है ये तुम देख रही हो। तुम मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद करना चाहती थी, मैंने तुम्हें कैद कर दिया। तुम्हें इस काबिल नहीं रखा कि एक बार भी मंत्र पढ़ सको। ये दुरुस्त है कि मैं तुम्हें जिंदा ज़्यादा देर तक कैदी बनाकर नहीं रख सकती। तुम भूखी प्यासी रहोगी तो मेरे जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी। मैं बिल्ली के जिस्म से आज़ाद होने के बावजूद अपने जिस्म को तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकती, वरना मैं लेडी एक्स के इस रूप में हमारे से बाहर जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। एक बार मैंने सोचा कि शिकनी के जरिए भवानी शंकर को अपनी और तुम्हारी दास्तान सुना दूँ कि किस तरह दो औरतों के दरमियान जादू और ज़हानत का मुकाबला जारी है, लेकिन ये बातें भवानी शंकर को बताने में मुझे अपना फ़ायदा नज़र नहीं आया और वो अफसरान अल्लाह हर हाल में यही चाहते कि मैं बिल्ली बनकर इनके अहम मिशन में काम करती रहूँ। अब से 2 दिन पहले भवानी शंकर ने मुझसे मेरी हकीकत पूछी थी। मैंने इनमें से कही कि अफसरों को शुबा है कि मेरे साथ कोई जादुई चक्कर है और कई अफसर जादू टोने को एमको की तरह दिमागी पैदावार कहते हैं, लेकिन अपने धर्म के अकीदे पर सब मुतफिक हैं। मैंने भी यही जवाब दिया, शायद मैं पिछले जन्म की कोई पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझ पर किसी ने जादू नहीं किया, ये सब भगवान की लीला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती और वो लोग भी ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। इन्हें इत्मीनान है कि इन्होंने तुम्हें और केदार को अपने शिकंजे में कस लिया है। तुम दोनों इन्हें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकोगे और तुम्हारी वजह से मैं भी इनके साथ रहूँगी और इनके काम आती रहूँगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? यही कि मेरा जो जिस्म जो तुम्हारे पास है उसे तुमसे छीन लूँ, तुम्हारे सांस लेने के रास्ते में दीवार बन जाओ। इस तरह हमारे दरमियान सख्त मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गई और अपने जिस्म में समा गई तो तुम्हारी रूह यहाँ किसी के जिस्म में समा कर हमारे से बाहर नहीं जा सकेगी, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, फौजी अदाब से न वाकिफ हो और ना ही केदार को यहाँ छोड़कर जा सकती हो। हत्ता कि बिल्ली के जिस्म में समा कर खुफिया पैगामात को भी नहीं समझ सकोगी। इस तरह मैं भी अपना जिस्म हासिल करके समारत से बाहर नहीं जा सकूंगी। हम दोनों मजबूर हैं, एक दूसरे की मदद के बगैर सीक्रेट सर्विस के इस महकमे से निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। फिलहाल दानिशमंदी ये है कि मैं तुम्हें अपने ही जिस्म में रहने दूँ और ख़ुद बिल्ली के शरीर में रहकर भवानी शंकर का इत्मीनान बहाल रखूँ। इस देश से बाहर जाते वक्त मैं सोचूंगी कि मुझे किस तरह तुमसे निपटना चाहिए। अपनी इस हालत को देखकर समझ लो कि मैं जब चाहूँ भवानी शंकर से कहकर तुम्हारी जुबान बंद करा सकती हूँ। वो मुझे अपना अल्लाहकार समझता है, मैं उसे अपना अल्लाहकार बनाकर जब चाहूँ तुम्हारे मंत्रों को रोक सकती हूँ। लिहाजा मुझे मजबूरन फिर एक बार बिल्ली के जिस्म में रहना होगा। अगर भवानी शंकर का इत्मीनान कायम रहे और वो हमें इस मुल्क से बाहर ले जाए। सामी की ज़ुबान से सुनकर इत्मीनान हुआ कि वो फिर बिल्ली के जिस्म में समा जाएगी। वो उससे ज़्यादा समझदार है। ये अच्छी तरह समझती है कि बिल्ली के रूप में सीक्रेट सर्विस वालों की अलाकार बने बगैर वो मुझे वहाँ से निकाल कर नहीं ले जा सकेगी। हमारे दरमियान एक अजीब सी जंग जारी थी। हमारी आपस में दुश्मनी है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हैं। मैं समझ रही थी कि सामी यही बातें बताने के लिए बिल्ली के जिस्म से आज़ाद होकर लेडी एक्स के रूप में आई है, लेकिन बात कुछ और भी थी। वो उस फ्रेब को नहीं भूली थी जो उसके बाप के साथ खेला गया था। उन्होंने मुझे नफरत से देखते हुए कहा, पता नहीं तेरा जन्म कैसे हुआ है, शायद तो अपने बाप का नाम भी नहीं जानती होगी, इसलिए तो ये भी नहीं जानती कि बेटी की जुदाई से माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती है। तूने मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा कर दिया, तेरी वजह से मेरी माँ सदमा सहते सहते मर गई। आज मेरे डैडी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन तुम सब ने मिलकर इन्हें धोखा दिया। तूने, भवानी शंकर ने, कर्नल ने और लेडी एक्स ने। फिर एक बाप को उसकी
गिन गिन कर बदले लूँगी। भवानी शंकर जो मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, मैं इस देश के बाहर जाकर इससे भी निमट लूँगी। लेडी एक्स का अंजाम तो तू देख ही रही है। इसका जिस्म रूह से खाली हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब कर्नल की बारी है। उसने मेरे डैडी को दुख पहुंचाया है, मैं उसे उस दुनिया के तमाम दुखों से आज़ाद करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। मैं इससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह पर बंधी हुई पट्टी ने कुछ न बोलने दिया। वो अपनी सुनाकर चली गई। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती हुई इसकी वापसी का इंतजार करने लगी। वो दोबारा लेडी एक्स के रूम में वापस नहीं आई। तकरीबन 8 घंटे बाद इस इमारत में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फिर खतरे की घंटियाँ बजने लगी। कमरे के बाहर नंगे फर्श पर फौजी बूटों की धमक सुनाई देने लगी। मेरी समझ में यही आया कि सामी ने रिवाल्वर की गोलियों से कर्नल को हलाक कर दिया होगा। रिवाल्वर लेडी एक्स के होस्टर में मौजूद था। वो बिला रोक टोक कर्नल की ख्वाबगाह में किसी भी बहाने जा सकती थी। बहुत देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। भवानी शंकर अपने 2 मतहत के साथ आया था। सबसे पहले उसने मुझे देखा। मैं इसी तरह बंधी हुई पड़ी थी जिस तरह वो मुझे छोड़कर गए थे। फिर उसने बिल्ली की जानब देखा। मेरी नज़रें भी मेज़ पर गई जहाँ वो मुर्दा पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो मुर्दा नहीं थी, मेज़ पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। दाएं पंजे से अपने सर को खुजा रही थी। भवानी शंकर ने उससे पूछा, क्या लेडी एक्स इस कमरे के अंदर आई थी? सामी ने इशारों में जवाब दिया। भवानी शंकर ने पूछा, वो क्यों आई थी और क्या कह रही थी? वो फिर इशारों में जवाब देने लगी। भवानी शंकर अपने मतहत को इन इशारों की वजाहत की। सामी ने उसे बताया कि लेडी एक्स कमरे में आकर मेरे हाथ पांव खोलना चाहती थी, लेकिन उसने फिर पंजे मारकर उसे भगा दिया। उसका जवाब सुनकर दोनों मतहत भवानी शंकर से तबादला ख्याल करने लगे। इनके समझ में नहीं आ रहा था लेडी एक्स को क्या हो गया। उसने एक ऐसी औरत को आज़ाद करना चाहा जिसे बांध कर रखा गया था। इन लोगों की गुफ्तगू से पता चला कि लेडी एक्स कर्नल की ख्वाबगाह में गई थी और कर्नल के कुछ समझने और संभलने से पहले ही उसकी दोनों टांगों को गोलियों से निशाना बनाया था। 2 गोलियां दाएं रान में और 2 गोलियां बाएं रान में पेश हो गई थी। कर्नल को फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाई जा रही थी। उनका ख्याल था कि वो बच तो जाएगा, लेकिन दोनों पैरों से अपाहज हो जाएगा। सामी ने उसे इस तरह मारा था कि वो जिंदा भी रहे, लेकिन एक अपाहज की तरह जिंदगी गुजारता रहे। मारने वाली सामी थी, मगर लेडी एक्स कातिल समझी जा रही थी। वो कत्ल करने के बाद खुद भी मुर्दा बनकर कर्नल के करीब गिर पड़ी थी। वो आप कैसे मर गई थी, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग कुछ भी सोच नहीं सकते थे कि कातला बिल्ली के रूप में इनके सामने बैठी हुई। भवानी शंकर ने सामी से इजाज़त लेकर मुझे आज़ाद कर दिया। इन्हें शुबा था कि मैंने वहाँ से फरार होने के लिए लेडी एक्स को अपनी हमायती और अलाकार बना लिया था। कर्नल को इसी साजिश के तहत जख्मी किया गया था। इस ख्याल के पेश नज़र मुझसे कई तरह के सवाल करते रहे। इनके अख्तियार में होता तो वो मुझे अजीतें दे देकर इस साजिश का इकरार करने पर मजबूर कर देते, लेकिन वो जानते थे कि मुझे हाथ भी लगाया तो सामी इनकी दुश्मन बन जाएगी और इनके किसी भी मिशन में काम नहीं आएगी। वो मेरे खिलाफ कोई कदम न उठा सके, लेकिन मुझसे और केदार से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने लगे। सामी इनकी नज़रों में फूल थी और हम कांटे की तरह खटक रहे थे। इस अरसा में मिशन पर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो रही थी। मुझे और केदार को इस्लामी तहजीब सिखाई जा रही थी। हमें जहाँ भी जाना था मुसलमान बनकर जाना था, लिहाजा हमें मुसलमानों के रहने सहने, खाने पीने, बोलने के आदाब सिखाए जा रहे थे। केदार का नाम कादर बख्श और मेरा नाम सलमा कादर रखा गया था। हम दोनों की हैसियत मियाँ बीवी की थी, यानी सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता था। सामी कम मौका देती थी कि एक रात मैं भी अपने मियाँ कादर बख्श के साथ गुजार सकती। बहरहाल ट्रेनिंग हासिल करने में 6 माह गुजर गए। एक दिन हम दिल्ली से बजरिया ट्रेन काठियावाड़ रवाना हुए। इस मिशन में भवानी शंकर हमारा लीडर था। मेरे, सामी और केदार के अलावा इसके 2 और मतहत थे। वो दोनों केदार की कड़ी निगरानी कर रहे थे। सामी के रूम में हमेशा भवानी शंकर के साथ रहती थी और मुझे भी नज़रों से ओझल नहीं होने देती। एक रात हम गैर कानूनी तरीका सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान के सरहदी शहर दीनापुर पहुंच गए। वहाँ सबसे
मिसाइल सर्टिफिकेट तैयार थे जिनकी रूह से हम मशरकी पाकिस्तान के बाशिंदे थे, क्योंकि हमें पाकिस्तान के वक्त से ढाका शहर में रहते आ रहे थे। दूसरे दिन हम ढाका के अंदर रवाना हो गए। जैसा कि तुमने अखबारों में पढ़ा होगा या रेडियो खबरों में सुना होगा कि ज़बरदस्त सैलाब वहाँ आया हुआ है। कहते हैं गांव और शहर पानी में डूबे हुए हैं। ढाका शहर के भी कितने ही इलाके सैलाब की जद में आ गए। हम भी वहाँ पहुँचे और शहर में हमारे देश के कितने ही जासूस, बेहतरीन जासूस रहायशी इलाकों में रहते हैं। हमारी रहायश का इंतज़ाम सिंखाई बाज़ार के पुराने इलाकों में किया गया।